one attempt, and there are in total only 288, almost close to 300 micro themes, 288 to be precise. This is the total number of micro themes. In other words, I am saying if you do 288 micro themes, your UPSC syllabus is done. Your preparation is at par as any other ranker. You have highest chances of covering the syllabus in a way that you will be able to write answers and qualify the exam. Whatever you study, 90% of what you study आप वो utilize ही नहीं कर पा रहे हो. In terms of ना आप आंसर लिख पा रहे हो, ना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ना कुछ हो पा रहा है. अगर आपने पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हैं तो वो नॉलेज का कुछ यूटिलाइजेशन ही नहीं है. मतलब आई एम आस्किंग यू टू स्टॉप एंड लुक बैक. दिस इज एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू. व्हाई आर वी स्टडिंग एनीथिंग इफ वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट? मतलब वो फील गुड के लिए थोड़ी करना है यार. लाइक यू विल लूज 2 years ऑफ योर लाइफ. वी कांट डू दैट. लाइक दिस, these are primes of your life, 20s, late 20s, etc. You just cannot afford. Please have a system in terms of PYQs and micro theme. Why? Because you have a clear answer. This is what UPSC has been asking again and again. So I have to close that loop. I started my full-fledged preparation after I joined the Ultimate Assessment Program at Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. There is a 12-month strategy which I have done on Civils Daily platform only. I reached out to the Civils Daily team. Civils Daily. Current affairs में Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. With Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. Civils Daily. A mentorship program of Civils Daily, and that did help me a lot. Today's session is, we are going to make sure that at the end of the session, our aim is that you go and have a lot of clarity in your mind that and you can ask a simple question today itself at the beginning of the session. Do I have a proper goals and system in my preparation? Like there is a system at place which makes me accountable, which guides me how much syllabus I need to cover by what time. Why am I covering certain part of the syllabus? Is it guided by some kind of signals from UPSC, or because I just bought some books, because I read somewhere that there are certain standard books that every beginner, every UPSC aspirant has to study, इसलिए मैं वो पढ़ रहा हूँ. Like all of us need to have that clarity कि before we assume, before we agree to any second person, this is my career, this is my exam, my preparation journey, before I agree to bring in any insight, any kind of content from this second person, although they must be credible and everything, but I'm just pushing you to ask a simple question because this is going to be the beginning of your preparation. 2027, most of you are appearing then. That ask a simple question that before I consider any second person's advice, whatever I have done for last 1 month, 2 months, I'm assuming आप लोग ने already पढ़ाई शुरू कर दी होगी थोड़ा बहुत NCERT या basic तो कर ही दिया होगा probably from May, June से. So you're probably 3-4 months into the preparation, and I think whatever I'll say, it will be helpful for you because now you're not complete beginner. You must have studied something, so you can relate maybe. So we are asking a simple question like, I just want to know whatever I am going to study tomorrow, today, tonight, whenever, or whatever I have been doing for last 3 months, is that based on what UPSC needs and requires? Or is it just because I have to cover a spectrum because of course everyone has to do it? Or of course I have to cover Lakshmikant because everyone has to do it. मतलब उसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते. So that's the point, right? I'm going to give you a proper system. A lot of us have a lot of like kind of a scattered preparation. It's ये भी करना है, वो भी करना है. So बहुत सारे open ends होते हैं. Like हमने कुछ शुरू किया but वो open end पे ही है. Like हमने कुछ PYQ analysis किया तो हमने देख लिया कि like we saw कि okay, I have to do 10 years of PYQ. I'll just buy a book. मैंने 2-3 दिन पढ़ा, 3 हफ्ते पढ़ा, 2 महीने पढ़ा, और शायद तुमने पूरा भी पढ़ लिया होगा. Like maybe you have studied or completed the book, but then you thought that is the end of it. Like you never went ahead and applied those understanding in your preparation. So sometimes all of us, we do things which are in the right direction, but we don't follow it to the end. Like हम उसको पूरा निचोड़ते नहीं है कि like it should actually help me in my preparation, और वो feel good रह जाता है बस कि हाँ I have done it. तो I'm going to hard hit you with these kind of things and systems कि यार थोड़ा सा और sharp करते हैं preparation. That's the whole point. And we'll take 4-5 things only. I'll not complicate much. We'll start with PYQ and micro themes. Just write yes or no if you don't know the word micro theme. I just want to know so that I can explain otherwise. If you have already been in touch with Civils Daily, you've been coming to the website or following YouTube, I'm sure you must know terms like micro theme or X factor. अगर नहीं है तो I will explain. But I'm assuming most of you will know the word. Then I'll talk about notes. I'll actually show you some of the ranker notes. Mock test में कैसे करना है, revision के लिए क्या करना है, and mentorship मतलब feedback वगैरह कैसे लेना है.
बस इतना ही करेंगे, दैट्स व्हाट विल डू एंड दिस विल हेल्प यू स्पेशली फॉर बिगिनर्स, राइट? ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टार्ट विद अ डेडलाइन. दिस इज अ डेडलाइन. मई में प्रीलिम्स है 2027 में एंड अगस्त में. सो यू हैव लाइक क्वाइट ऑफ लाइक 16-18 months एंड इट इज डूएबल. पीपल डू इट. टुडे वी विल टॉक अबाउट सम यूपीएससी प्रिपरेशन लूप्स में पहले समझा देता हूँ. You start something, how do you close that loop in a way that you are expected to from UPSC? Like, let's say you start a subject. The first question is, why should I complete this subject? How many questions have been asked? What is UPSC expecting? What is the nature of question? Once I understood the nature of the question, the importance of the topic, how do I understand, like, how do I make notes of that topic so that they cover maximum dimension, को छूटे ना, करंट अफेयर से भी, स्टैटिक से भी. अब मेरे नोट्स भी बन गए हैं, तो फिर मैं उसको टेस्ट कैसे करूँ, मॉक टेस्ट कैसे लगाऊं. मॉक टेस्ट भी दे दिया है, तो फिर मैं अपने गैप्स कैसे क्लोज करूँ जो एक्सपोज हो गए हैं मॉक टेस्ट में, जो गैप्स आ रहे हैं, जो एरर्स हो रहे हैं, वो कैसे कवर करूँ. उसके बाद रिवीजन कैसे करना है, और उसके बाद किसी से फीडबैक लेना है तो वो कैसे करना है. दिस इज अ कंप्लीट लूप. नाउ यू कैन 100% से कि मेरा टॉपिक हो गया है, क्योंकि सब कुछ बैक्ड बाय यूपीएससी का पीवाईक्यू है. सब कुछ जो वो सिग्नल दे रहे हैं उससे ऐसे. ये दिस इज अ सिस्टम. अभी होगा क्या, आपको लगता है कि okay, I will complete a subject or a topic because UPSC has been asking from that topic, which is what we call micro themes. Someone was asking. Micro themes are nothing but most recurringly asked topic. ऐसे सोचो, in simple terms, these are the topics, themes, which are UPSC's most favorite. मतलब वो आने ही हैं. It's just foolish to ignore them. It just, मतलब आप अपने अगेंस्ट काम कर रहे हो, and that is the worst. So वो नहीं करना है. That's what micro theme is. And so the aim is to make you aware of all the preparation loops. Today we'll talk about 4 or 5 loops in terms of syllabus coverage, mock test, revision, note making, feedback / mentorship, etc. So that's what we are going to talk about, right? First we'll talk about syllabus coverage, PYQ and micro themes, right? अभी आपको 5 अटेम्प्ट की जरूरत नहीं है. I've been saying this, right? 1 attempt and there are in total only 288, almost close to 300 micro themes, 288 to be precise. This is the total number of micro themes. In other words, I am saying if you do 288 micro themes, your UPSC syllabus is done. Your preparation is at par as any other ranker. You have highest chances of covering the syllabus in a way that you will be able to write answers and qualify the exam. So जब आप सुबह उठ रहे हो, आपका एक ही एम है, मुझे एक्स डेट तक, वाई मंथ तक मेरे को 288 माइक्रो थीम्स करनी है. नाउ यू वर्क बैकवर्ड फ्रॉम देयर. हाउ मेनी डू यू डू इन अ वीक? हाउ मेनी माइक्रो थीम्स इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस that UPSC has given, but prioritized part of syllabus. All this whole syllabus is prioritized basis how many questions have been coming. Are we clear at this place? Go to UPSC website, download the syllabus. The first question we should ask is, but how do I know which syllabus topic is more important than others, right? How do you know that? So the answer to that is basically checking how many questions have been coming from that topic, and then you prioritize. Are we clear? Yes, no? Have you understood what is micro theme? Why 288 topics are important, and how do we make sure that these are the ones? You just write yes or no so that I can move forward. Just be more interactive. Great. Okay, cool. Now we know there are, just remember this number, 288 micro themes. Okay. Lot of aspirants, they don't make through multiple attempts because आपको लगता है सिलेबस बहुत बड़ा है एंड आपको याद नहीं रहेगा, या फिर आपने याद भी रख लिया है तो आर्टिकुलेशन नहीं है, बेसिकली आप आंसर नहीं लिख पा रहे हो. आंसर भी लिख पा रहे हो तो आपको कोई ऐसे मेंटर बोल देता है लाइक, you are not writing what UPSC is asking. You are writing, but not in a way you're not meeting the demand of the question. UPSC is expecting something else. Some people will come and say कि एक structure में लिखना होता है. There is a way to write the answer. You have to do this. You have to do this. There are multiple elements in an answer. Diagram add करना होता है, flow diagram add करना होता है, etc. Underline करो keywords को, ये करो, multiple dimension में लिखो. अभी तो ये pestle vestal लोग बोलते रहते हैं. Don't go for that. I'm just giving you example that this is what goes on. So you think that multiple attempts are, you have to go through that because syllabus बड़ा है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रही है एग्जाम, या फिर आपको याद नहीं रहता है, या आपसे मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है, लाइक अटेम्प्ट नहीं हो रहा है. इट्स हैपनिंग बिकॉज आपके पास एक सिस्टम नहीं है टू कवर इट. आपका डेली रूटीन ऐसा दिखता है, रीड द पॉइंट 1 2 3.
You probably are reading a newspaper or some website and then some newspaper or some magazine, etc. Probably, this is just a guess. Second, you study some subject or optional subject, etc. for a few hours a day, right? And divided as per your daily routine. And then रात को आप कुछ कर रहे होगे, PYQ देख रहे होगे, कुछ लेक्चर अटेंड कर रहे होगे, वीडियो देख रहे होगे, और कुछ भी पहले आप क्लास जा रहे हो, फिर खुद से पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी. ये यू कांट कॉल दिस अ सिस्टम कि आप सुबह उठ के कुछ तो करा, कुछ बुक उठाया, कुछ पढ़ा, कुछ शाम को कुछ कर लिया. ये दिस इज सम पीपल हैव थोड़ा सा और इवॉल्व्ड. दे विल हैव अ डेली लाइक गोल और रूटीन. बट वो रूटीन भी तो आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है. आपने सब्जेक्ट को या सिलेबस को प्रायोरिटाइज अभी तक नहीं किया है. सिस्टम बहुत डिटर्मिनिस्टिक होता है. देन ओनली यू कैन कॉल इट अ सिस्टम. डिटर्मिनिस्टिक मीन्स इट्स एक्सट्रीमली प्रिसाइज and it has a evidence that why you are doing it. In this case, evidence is PYQ. So you should always have a number like I gave you. There are 288 micro themes. We need to hit them. Basis how much time we have every day, how many micro themes we can cover every day or every week, right? For 2027, it's in terms of week or whatever is your preparation cycle. You cover in 15 days, 10 days, 7 days, whatever it is, right? And you need to put efforts like that. Whatever you study, 90% of what you study आप वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ. ना आप आंसर लिख पा रहे हो, ना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ना कुछ हो पा रहा है. अगर आपने पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हैं तो वो नॉलेज का कुछ यूटिलाइजेशन ही नहीं है. मतलब आई एम आस्किंग यू टू स्टॉप एंड लुक बैक. दिस इज एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू. Why are we studying anything if we are not able to utilize it? मतलब वो feel good के लिए थोड़ी करना है यार. Like you will lose 2 years of your life. We can't do that. Like this, these are primes of your life, 20s, late 20s, etc. You just cannot afford. Please have a system in terms of PYQs and micro theme. Why? Because you have a clear answer. This is what UPSC has been asking again and again. So I have to close that loop, right? Even if you are studying 10 hours, 90% you'll not use. So only 10-15% is what you end up utilizing, or that remains, right? So first, these are traps that every beginner goes through, and I want you to stop here and then make sure आज के बाद ये ना हो. First is relevance black hole. मतलब आप जो भी अभी बुक उठा रहे हो, ठीक है, अगर आप लेट्स से डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हो आज, let's say you are starting your preparation and then you are studying disaster management. I'm taking disaster management just an example. Okay, what is the relevance? Like how many questions do you think disaster, can someone tell me how many questions come from disaster management each year in mains or in prelims? Is that highly recurring or not? Like low, moderate, high. Just write low, moderate, high. And you have been investing, let's say, I don't know, enough number of hours on a weekly basis to study that topic. Just write the relevance in UPSC. लो अभी देखो आपको खुद पता है ऐसे. अब ये सेम डिजास्टर मैनेजमेंट वाज जस्ट एन एग्जांपल, बट आई एम आस्किंग अब ओके आंसर मी फंडामेंटल राइट. इज दैट लो, मॉडरेट, हाई in terms of importance, in terms of prioritization? Fundamental rights, low, moderate, high. High, all of you. So we intuitively know what Civils Delhi has done. ये सब आपको लिख के दे दिया एक PDF में, एक सिस्टम में. अभी आपकी अभी कैसे हो सकता है यार? मतलब you wake up, let's say one of you wake up tomorrow and आप सीधा वो PDF में देखो कि यार मेरे 7 हाई प्रायोरिटी वाले माइक्रो थीम हो गए हैं, अब मैं इस पे जाता हूँ. और when you say the word हो गए हैं, it doesn't mean कि पढ़ लिया है. It's a whole loop. पढ़ लिया is just a starting point. ये भी गलती करते हैं. So 60% of what we study वो relevant ही नहीं है. ना वो PYQ से backed है, ना वो माइक्रो थीम में आ रहा है. तो मतलब I don't know why we invest so much time and then we feel कि सब सही चल रहा है. कुछ रियलिटी चेक तो लगाओ यार बीच में कि ये सही, ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है. उस तरीके से प्रायोरिटाइज करके हमको पढ़ना है. तो ये बिगिनर बहुत गलती करते हैं, ये हमें नहीं करना. रैंकर यही नहीं करते हैं. अब उनको बोलो डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ो, बोलो क्या कर रहा है भाई, एक क्वेश्चन आता है, वो भी शायद सॉल्व हो जाएगा. मतलब study these things which are coming again and again, right? And become better in those topics in terms of writing answers and solving MCQs. So second is application. मतलब even if you find something relevant that you are studying, but आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो in terms of answer writing, like you're not able to articulate, वो सेम टाइम पे याद आना, डॉट्स को कनेक्ट करना, स्टैटिक करंट अफेयर्स के डॉट्स को कनेक्ट करना, तो वो एप्लीकेशन या आर्टिकुलेशन में फंसते हैं कि हाउ डू आई यूज दैट पर्टिकुलर नॉलेज एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस, etc. That is another problem. This comes from the
the things that are relevant for the exam. That is why I'm saying सिर्फ पढ़ लेना enough नहीं है. People don't close the loop. उसे पढ़ के ही हो जाता है उसका एप्लीकेशन. एंड थर्ड इज R&D. मतलब अननेसेसरी चीज़ों में आप टाइम स्पेंड करके गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लिया, ये कर लिया, नोट्स कर लिया, कोई वीडियो देख लो, वो सब कर लो. और आजकल मतलब थिंग्स लाइक ये कंसोलिडेट कर लो, वो कर लो. तो यार थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट सेइंग दोस थिंग्स आर रॉन्ग, बट अभी बिगिनर स्टेज है प्रिपरेशन की. लेट्स गेट आवर फंडामेंटल राइट. एंड ये सब बताने की चीज़ें नहीं है कि आपको किस पे रिसर्च करना है. वो एक बच्चे को लाइक यू विल इंट्यूटिवली नो व्हाट टू रिसर्च अबाउट 100%. यू 100% डोंट नीड एनीवन टू कम एंड टेल यू कि आप इस पे रिसर्च करो. वो आ ही जाएगा आपको. आप इतने टेस्ट दे लोगे, आप इतना पीवाईक्यू कर लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो मेरा वीक एरिया है. आई नीड टू कंसोलिडेट माई नोट्स, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. तो यू टेक द वर्कलोड, बट एटलीस्ट टेक इट इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, जबरदस्ती की मेहनत मत करो. मतलब मेहनत करो यार, 8-9 घंटे पढ़ो, बट बहुत सही तरीके से सही डायरेक्शन में करो. नहीं, ऐसे नहीं करना है कि कहीं भी यू आर डूइंग इट. ठीक है. सो from today onwards, make sure that micro theme is what is the unit of your preparation. जो basic unit है वो micro theme होनी चाहिए आपकी preparation के. It feels like this on a daily basis that everything you do, you ask a basic simple question, fundamental question कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे कितने क्वेश्चन आए हैं. अब इसके लिए आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी. 10-15-20 साल के क्वेश्चंस को ऐसे सिक्वेंशली लगा के क्लस्टर करके आपको प्रायोरिटाइजेशन देखना पड़ेगा. तो वो नहीं करना है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वी हैव डन इट. इट्स अवेलेबल. सो यू विल हैव द अपडेटेड 2025 तक का हमने माइक्रो थीम अपडेट कर दिया है. एंड आई विल शेयर द लिंक इन द एंड. तो वो कर सकते हो. एंड प्रीलिम्स का माइक्रो थीम वी आर अबाउट, मेंस का वी हैव डन, prelims का we are about to release this week. Lot of students have been asking for prelims micro theme. We are about to release by the end of this week 100%. तो उसका भी PDF आ जाएगा on your emails, on your WhatsApp and YouTube पे जाके you will see. So the point I am saying, everything we will study from today, from tomorrow, we will ask a simple question: how important is this topic? ठीक है, यही हमारा सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए. एंड when we say how important, we are saying कितने क्वेश्चन आते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की. वो हमारी पहली स्टेप है. ठीक है. सो माइक्रो थीम बिकम्स द यूनिट ऑफ आवर प्रिपरेशन. ओके. अब बिकॉज वी आर क्लोजिंग द लूप एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेबस कवरेज एक्सेट्रा, लेट्स हैव अ मैक्रो व्यू ऑफ योर सिलेबस. check, I've listed this. So polity, geography, economy ऐसे करके probably 15-16 subjects is what all of us are going to study for this preparation. ठीक है. This includes your mains also. That's why you see other things. So the thing is, look at the number of micro themes in each subject. So polity 45, geography first one, those are micro themes. Then you see mains में 106, prelims number of questions 295, current affairs related 52, etc. ठीक है. So all those questions have been clubbed under certain topics. So 106 question, 295 questions, current affairs के 52 questions. When I ask you to club them under a single topic as per their category, you will come up with 45 micro theme. ठीक है. उसके अंदर you can see कि क्या है. So this is the prioritization of. अभी देखो, luckily disaster management is at the last. ठीक है. So अभी which subject should you pick up first? Like sincerely बताओ मुझे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ लेने चाहिए. कौन से 3 सब्जेक्ट आप सबसे पहले उठाओगे अगर आप बिगिनर हो तो? किन सब्जेक्ट की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेक श्योर कि हमको मेंस एंड प्रीलिम्स हमारे कंट्रोल में आ जाए. जस्ट राइट इन द चैट व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू थिंक वी शुड बी प्रायोरिटाइजिंग. जियो पॉलिटी को, जियो ज्योग्राफी को. तो सिंपल क्वेश्चन है, फंडामेंटल. बट हम होता क्या है कि इन द फास्ट पेस्ड प्रिपरेशन एंड टू मच नॉइज वी फॉरगेट टू आस्क दीज बेसिक क्वेश्चन. एग्जाम को हमने तो ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट बना दिया. लाइक एज एन एस्पायरेंट वी कॉम्प्लिकेट दिस एग्जाम टू मच एंड दैट्स व्हाट रैंकर्स डोंट डू. वो बिल्कुल क्लियर है यार कि मतलब क्यों करना है मेरे को. मतलब यूपीएससी बोल रहा है कि वहां से नहीं आएगा. सो हियर इज अनदर काइंड ऑफ ओवरव्यू फॉर ऑल ऑफ यू. There are 371 micro themes in total. Like in total, in last 10-15 years of PYQs for prelims and mains. I'll simplify the whole thing for you. 371. 57 कॉमन है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस शेयर होता है, इसलिए वो कॉमन है. 200 एक्सक्लूसिवली मेंस के लिए है और 114 प्रीलिम्स की माइक्रो थीम्स है. ठीक है. अगर हम ये क्वेश्चन पूछें, दीज आर कंप्लीट माइक्रो थीम. बट इफ आई टर्न अप अ नॉच अ बिट एंड आई से मेरे को पूरी माइक्रो थीम मत बताओ,
मेरे को बस ये ऐसी माइक्रो थीम बताओ जिनसे 2 क्वेश्चन मिनिमम आए हो और 2 से ज्यादा आए, तब 288 हो जाता है। क्योंकि अगर किसी माइक्रो थीम से एक ही क्वेश्चन आया है या 5 साल में 2 क्वेश्चन आए हैं, भाई अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वी डोंट हैव दैट मच टाइम। मतलब विच वन विल यू चूज इन ऑर्डर ऑफ, लाइक इफ अगर आप इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, आप ऑफकोर्स उससे पूछोगे जिससे 7 क्वेश्चन आए जा रहे हैं। तो अभी सो दैट्स व्हाई वी हैव फिल्टर्ड इट अ बिट, हमने और टाइट कर दिया है जैसे और क्लैरिटी में रहे बच्चे कि 288 माइक्रो थीम्स हैं, एक्चुअली में 371 है। बट उनसे एक क्वेश्चन आ रहा है तो वो कैसे माइक, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी निल है ना, वो तो कोई नहीं बता सकता आएगा कि नहीं, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ही निल है। सो आई होप हैज एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाई देयर आर 288। आई नीड यू टू रिमेंबर दिस नंबर बिकॉज देयर आर 371, बट देयर आर माइक्रो थीम्स जहां से 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, एंड दैट्स व्हेन वी फिल्टर्ड लाइक दैट, देन इट बिकम्स 288। आर वी क्लियर? हाउ डिड दिस नंबर कम 288 at the beginning itself? Just write yes, no, otherwise I'll explain again. Okay, others? ठीक है, great. Now there are 177 micro themes. How? 140 मेंस, 37 कॉमन है प्रीलिम्स और मेंस में, तो 177 मेंस की है। प्रीलिम्स की 111 माइक्रो थीम है। दिस इज आवर फाइनल नंबर। ये नंबर आपके सामने होना चाहिए, एंड आई विल गिव यू द पीडीएफ इन द एंड फॉर मेंस। तो आपको ये सब ऐसे याद नहीं करना है, बट रिमेंबर जब आप चेक करोगे कि यार मेरी 60 माइक्रो थीम्स कवर हो गई हैं बाय द एंड ऑफ लेट्स से, आई डोंट नो, February नेक्स्ट ईयर, मैंने 60 माइक्रो थीम कवर कर लिया। सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर। और इनसे 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर आर। अभी ये मजाक नहीं है 288 कवर करना, ऐसे सुनने में लग रहा है कि कर लूंगा जल्दी हो जाएगा, बट इट्स ह्यूज। मतलब 288 को एट द बैक ऑफ द माइक्रो थीम तो पूरा सिलेबस ही है ना यूपीएससी का, बट आपने प्रायोरिटाइज कर दिया सिलेबस, थोड़ा और इंटेलिजेंटली अप्रोच कर रहे हो अब आप सिलेबस। तो अब पॉलिटी देखते हैं, एक सब्जेक्ट को पकड़ के मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ क्यों ये इतनी टेंशन की बात नहीं है। लुक एट दिस पॉलिटी। पॉलिटी के अंदर हमने जो 45 माइक्रो थीम मैंने आपको बताई थी उसका ब्रेकडाउन है। ओके, नाउ अंडर पॉलिटी देर आर 45 माइक्रो थीम, बट इफ आई आस्क कि ऐसी माइक्रो थीम बताओ जिससे 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन आए हो, देन दे बिकम 35। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल थ्योरी से कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले 10-12 साल में, कोई बता सकते हैं? रिट्स से कितने क्वेश्चन आए हैं मेंस में? प्रेसिडेंट इलेक्शन, हाउ मेनी क्वेश्चन हैव कम? 0 क्वेश्चन। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, क्यों पढ़ रहे हैं हम प्रेसिडेंट इलेक्शन? दिन में 6 बार आप लगे हुए 6-6 घंटे कि लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ लेता हूँ। आप समझो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, आपके लिए ना हर कुछ बहुत नाइव है अभी, यू आर अ बिगिनर। आपको क्या लगेगा कि लक्ष्मीकांत एक होली बुक है भाई, इसका कुछ भी नहीं छोड़ सकता मैं, ये मजाक वाला एग्जाम थोड़ी है, कुछ को हैक थोड़ी कर सकता हूँ इसको, तो मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा पेज टू कवर। क्योंकि बुक में प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, लक्ष्मीकांत बुक में कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, तो हम इक्वल वैल्यू दे देंगे। अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन पे चैप्टर पे जब आओगे तो आप उतनी ही सिंसियरिटी से पढ़ोगे उस चैप्टर को जितना आप फेडरलिज्म को पढ़ोगे। पर एग्जाम की असलियत क्या है यार, फेडरलिज्म में 10 क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में, और जो आप पढ़ रहे हो सेम सिंसियरिटी से उसमें 0 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई माइक्रो थीम दे फंडामेंटली चेंज द वे यू अप्रोच दिस एग्जाम? दिस इज द वे रैंकर्स प्रायोरिटाइज द होल थिंग। आई एम ट्राइंग टू क्वांटिफाई योर एफर्ट्स हेयर कि मतलब और अगर आपको और टाइट करनी है प्रिपरेशन तो आप ऐसे कर सकते हो, मेरे को उतना ही बताओ कि 3 से ज्यादा जिसमें आए हो, तो फिर कितनी माइक्रो थीम है यार? मुश्किल से 20-15 माइक्रो थीम है। टेल मी हाउ विल यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? विल यू स्टार्ट फ्रॉम रिट्स और फेडरलिज्म, राइट? तो जब आपने शुरू की, आप यहाँ से शुरू करोगे, सबसे पहले मैं फेडरलिज्म पढ़ता हूँ, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो। दिस इज आफ्टर यू हैव डन द बेसिक एनसीईआरटीज ऑफ कोर्स, सो दैट यू हैव द आइडिया ऑफ एवरीथिंग। डोंट जंप फ्रॉम हियर एंड देयर लाइक दैट, ठीक है? एंड देन यू गो डाउन। फिर आप 0 वाले करने का टाइम है तो आप वो भी कर लो, 1 वाले करने का टाइम है तो वो भी कर लो, फ्रीक्वेंसी बता रहा हूँ। बट इवेंचुअली व्हेन यू टर्न अप द नॉच यू रियलाइज कि इतना, मतलब इट्स इजी टू कवर, इट्स इजी टू कवर दीज माइक्रो थीम्स, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? एंड आर आर पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑलवेज कि बुक में है, लक्ष्मीकांत में है, स्पेक्ट्रम में है, तो भाई सब पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू like say here कि don't prepare like that, right? Now for every micro theme we need to have a deadline. If you are
इफ यू आर समवन हु बिलीव्स इन टाइम टेबल, कि मेरे पास टाइम टेबल रहता है तो मेरी अकाउंटेबिलिटी होती है, तो इफ यू आर समवन जिसको किसी की हेल्प चाहिए होती है, मेंटर एक्सेट्रा, तो उनसे आप मतलब मेक श्योर करो कि यू कवर सर्टेन, like how, like basis how many hours can you put it if you're a working professional or something like that, कि आप हफ्ते में 3 माइक्रो थीम कर सकते हो, दिन में 1 कर सकते हो, डेली 2 कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, but you have to have a deadline. You have to tell yourself, commit to yourself, how many should I cover in a day, and I'll give you the overall timeline, कितने तारीख तक कितना क्या करना है वो आ रहा है, but I hope you understand कि डेडलाइन करना जरूरी है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। इस तरीके से पढ़ना है, एक सिस्टम में पढ़ना है, नहीं तो अभी आप कुछ भी किताब उठाओगे, कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, वैसे नहीं करना है, मतलब मैसिव वेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स एंड टाइम एंड एनर्जी है यार, मैसिव वेस्ट। आपको अचानक से पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो तो उसका तो उससे तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। 2 माइक्रो थीम पर साइकिल। साइकिल किसी का दिन होता है, किसी का वीक होता है, किसी का कुछ और होता है, 15 दिन होता है, 10 दिन होता है, तो जो भी आपका प्रिपरेशन साइकिल है, आप जिस स्टेज के ऊपर, बहुत अर्ली हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, सो यू कैन से कि यार 2 हफ्ते में 2 माइक्रो थीम तो मैं कर लूंगा, ठीक है। स्पेशली अगर आप 2027 दे रहे हो तो यू हैव इनफ टाइम। सो 177 देयर, एंड देन व्हेन प्रीलिम्स कम्स तो बहुत सारा शेयर्ड पार्ट है, कॉमन भी है, तो आपका प्रीलिम्स का तो वैसे भी हो रहा है, बट एक्सक्लूसिव देयर आर 111, वी आर अबाउट टू रिलीज प्रीलिम्स का माइक्रो थीम का डॉक दिस वीक, तो वो भी है, ठीक है। अगेन माइक्रो थीम पे तब आना है जब अपनी एनसीईआरटीज हो गई है, ओके, चारों सब्जेक्ट की, मेन सब्जेक्ट की। वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन एंड माइक्रो थीम्स, अब हम आते हैं कि उस हर एक माइक्रो थीम का कंटेंट कैसे बनाऊं मैं। नथिंग, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स, नो वन इज टेकिंग देम अवे, यू हैव टू रेफर टू देम, एनसीईआरटीज हैं, अगर आप कहीं लेक्चर कर रहे हो, क्लास कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो वो है, अगर कुछ यूट्यूब से देखते हो तो वो है, कुछ रिकॉर्डेड लाइव सेशन करते हो तो वो है, एंड आई वुड सजेस्ट एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड रिसोर्सेज आर इनफ। एंड उसमें डायमेंशंस और ओरिजिनल पॉइंट ऐड करने के लिए 2 चीजें करनी होती हैं। पहला, you can do 3 things. पहला, you have to go through and for that particular topic or for that particular paper, go and check toppers copies. नॉट कि उन्होंने कैसा आंसर लिखा है, वो स्टेज अभी आप हिट नहीं करोगे, आपने तो अभी पहला आंसर भी नहीं लिखा है, इतने बड़े ख्वाब नहीं देखने अभी से। लाइक आई सेड, फालतू का वर्कलोड मत बढ़ाओ, फालतू का एंजाइटी नहीं कि अरे उन्होंने तो ऐसा लिख दिया मैंने, अरे भाई दे ऑल्सो वर एट योर स्टेज। सो ऑल वी नीड टू गेट फ्रॉम द टॉपर कॉपीज इज, कैन आई गेट सम ओरिजिनल पॉइंट जो इन्होंने वहां पे सोच के लिख दिया है, जो मेरे को कहीं और मिलेगा नहीं। दैट इज द ओनली थिंग वी वांट राइट नाउ। उस पॉइंट को उठा के हम अपने लिख लेंगे, जहां भी अभी आप लिख रहे हो। अभी हमने 1 पेजर नोट्स नहीं बनाए, जो भी रफ कहीं भी लिखना है लिख लो अलग से बना के। सेकेंड इज, इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी टेस्ट और इफ यू आर इवन नॉट अटेम्प्टिंग एनी टेस्ट, अगर आपको कहीं से टेस्ट मिल रहा है उसका मॉडल आंसर लो, मॉडल आंसर को पढ़ लो, वहां से कुछ ओरिजिनल पॉइंट मिल रहा है अपने कंटेंट में ऐड कर दो। एंड थर्ड इज एक्स फैक्टर नोट्स। इससे ज्यादा कहीं, इस इम्पॉसिबल है, इससे आगे इसके ज्यादा एक ही चीज हो सकती है, वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि वो रिफ्रेश होता रहता है, कुछ नया आ जाएगा एक्सेट्रा, ठीक है, वो आपको ऐड करता है ना। इफ यू हैव, लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग टू रीड करंट अफेयर्स एक्सेट्रा, अदरवाइज उसकी भी मैगजीन है, इवेंचुअली आप 1 पेजर नोट्स बनाओगे तो वहां पे लिख सकते हो एक्सेट्रा, ठीक है। सो द थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द माइक्रो थीम, हमको हर एक माइक्रो थीम का कंटेंट बनाना है। इमेजिन A4 शीट, उस पर मेरी माइक्रो थीम का टॉपिक लिखा है ऊपर, और मेरे को उसका कंटेंट चाहिए जिससे मैं बोल सकूं कि मैं इसको समझ गया हूँ, ये वाली माइक्रो थीम मेरी कवर हो रही है। फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक से लिखना है, ठीक है, रीडिंग करो, समझो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको लिख लो, हाईलाइट करना है अभी हाईलाइट कर लो, कोई बात नहीं है, हर चीज का नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। सेकंड, टॉपर कॉपीज पढ़ लो, लगता है कुछ इंपॉर्टेंट ओरिजिनल है जो मुझे स्टैंडर्ड बुक में नहीं लिखेगा, उठा लो, क्योंकि अभी तक आपने पीवाईक्यूज, पता है आपको कि यूपीएससी माइक्रो थीम जब पीडीएफ पढ़ोगे तो उसमें पीवाईक्यूज भी लिखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी अच्छा इस थीम से इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि मैं टॉपर कॉपी से क्या उठाऊं, क्योंकि यूपीएससी उस टाइप का पूछ रहा है और ये मेरे को जरूरत पड़ेगी आगे। एंड लास्ट थिंग इज योर मॉडल आंसर्स, एक्सपेक्टर एंड मॉडल आंसर्स फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज वेर एवर यू आर, की कैन आई पिक अप सम ओरिजिनल पॉइंट। सो दिस, वी आर ब्रिंगिंग, वी हैव प्रायोरिटाइज द सिलेबस, नाउ टू कवर दैट टॉपिक का कॉन्टेंट, we are taking these 3-4 sources and putting that at one place। ये एक सिस्टम है, ये आप एक पहले माइक्रो थीम को प्रायोरिटाइज किया,
सिलेबस को प्रायोरिटाइज किया इन टर्म्स ऑफ माइक्रो थीम। उस माइक्रो थीम का कंटेंट बनाने के लिए हमने बहुत सारे सोर्सेस लिए, स्टैंडर्ड सोर्स, एक्स फैक्टर, टॉपर कॉपीज, आपका मॉडल आंसर्स, और उस सारी चीज को हम कोलेट कर रहे हैं एक जगह, पूरा सरदर्द हट रहे। स्कैटर्ड प्रिपरेशन नहीं है, हर माइक्रो थीम के लिए बस ये करना है, कुछ और नहीं करना है। यही दिस इज व्हाट सिस्टम इज। आपका प्रिपरेशन बिल्कुल एक डायरेक्शन में जा रहा है। कोई पहला तो आप वही चीज पढ़ रहे हो जो प्रायोरिटाइज्ड है, फिर आप कुछ भी कंटेंट मिस नहीं कर रहे हो, कहीं लीकेज दिख रहा है आपको, सो कोई इशू नहीं है इसमें। लाइक डोंट डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट डूइंग एनीथिंग एल्स एक्सेट्रा अनलेस आपने ये कर लिया हो। देन कम्स आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क, बिकॉज नाउ यू हैव द कंटेंट, आपके नोट्स बन रहे हैं तो आपके पास अब कंटेंट आ रहा है। वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फेटल 5। इसका मतलब ये है कि सो अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट कम एंड से सर अभी तो मेरा 5-6 महीने हुए हैं, मतलब हाउ डू आई राइट आंसर, हाउ डू आई मेक श्योर लाइक आई हैव I'm able to use the knowledge that I'm gathering, etc. Right? Fatal 5 is something ki forget about writing ranker level answer in the early stages of your preparation. All you have in what is the whole problem? ऐसी क्या basic गलतियां हैं जो दुनिया में कोई रैंकर नहीं करता है? ये fatal 5 is nothing but the most basic mistakes any aspirant at their early stage will do. So ये तो नहीं करना है, because if you do these 5 fatal mistakes, UPSC will punish you. So no ranker does it. Forget about can I write ranker level answer etc. essay etc. अभी हमको बस ये सोचना है कि ये 5 चीजें तो अगर मैं आंसर लिखूंगा तो नहीं करनी है। पहला, इंट्रोडक्शन फ्लॉ। आपको कुछ और पूछा गया है, आपने आंसर में क्वेश्चन को ही पहली लाइन में रिफ्रेश करके लिख दिया, वो कुछ और पूछ रहे हैं, आपने बस उस टॉपिक की डेफिनेशन लिख दी। ये सब गलती, रैंडम इंफॉर्मेशन डेटा लिख दिया रैंडम, मतलब उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। तो ये गलतियां नहीं करनी है। ये मैं बिगिनर को बता रहा हूँ कि अगर आपको मन करे कि मैं आंसर लिख के देखता हूँ उस टॉपिक का, तो ये 5 गलती मत करना। दिस डजंट मीन कि मेंस का आंसर राइटिंग का प्रिपरेशन हो गया है, बट नो रैंकर कमिट्स दीज मिस्टेक्स। आई एम रिपीटिंग अगेन, दीज आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स दैट यू कांट अफोर्ड टू डू। ठीक है? बॉडी पैराग्राफ लॉ, लाइक सब हेडिंग्स सेपरेट आप लगा के रख रहे हो ईच डिमांड की, देयर इज नो फ्लो, there's no like your one statement ends और कुछ अलग ही अचानक से शुरू हो गया, there is no context etc. Right? We have something called as DAE approach. I'll explain by the end of it what is it. Is dimension, argument, and examples. It is a way of writing and approaching a mains answer in your GS paper. How do you address for dimensions, arguments? How do you back your arguments by some data, etc. And then examples, etc. So वो थोड़ा सा लैग कर रहे हो, कंक्लूजन ही मिसिंग है, या फिर अजीब सा कंक्लूजन है, irrelevant है, नो कॉन्टेक्स्ट एक्सेट्रा, राइट? सो एंड अननेसेसरी कोट्स एंड डायग्राम, बिकॉज हम थोड़ा अभी सा अर्ली स्टेज में है, तो हम ये बहुत सुनते हैं, टॉपर की कॉपीज देखते हैं, हमें लगता है हर जगह डायग्राम है, तो हम जबरदस्ती का करते हैं, कोट से शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं, मतलब वो ये गलती नहीं करेंगे। हैज एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज फेटल 5? जस्ट राइट यस नो। these are the these are the basic hygiene all of us need to have if we are think at the early stage of our preparation, if we are trying to write answers, कि ये 5 गलती तो मैं नहीं करूंगा। कुछ भी फ्लॉ लिख दिया, ये लिख दिया, मतलब बेसिकली आप पहले क्वेश्चन समझना सीख जाओ, दैट इज व्हाट इट मींस। ओके, दीज आर द 5 मिस्टेक्स वी डोंट वांट टू डू फॉर प्रीलिम्स। for prelims we have 111 micro themes, almost 100 plus, एंड यहाँ पे भी कंटेंट डिफिसिट का अप्रोच सेम है। पहला, स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटीज, योर स्टैंडर्ड बुक्स फॉर ऑल द जीएस सब्जेक्ट्स, सेम फॉर सी सेट। पेज लेना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है? इसको एनरिच करने के लिए वट एवर टेस्ट सीरीज या जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, या पीवाईक्यू का कुछ बुकलेट है, उसमें से अगर कुछ ओरिजिनल पॉइंट मिल रहा है, कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो मेरी एनसीईआरटी में नहीं है, मेरी स्टैंडर्ड बुक में नहीं है, पर भी यूपीएससी पूछे जा रहा है, ये क्या है, तो उसको लिख लो। ठीक है? यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी बहुत वैल्यू है, व्हाटएवर प्लेसेस इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, स्पीसीज इन न्यूज, सम न्यू यूएन बॉडी का कुछ नया अपडेट है एक्सेट्रा, तो लॉट ऑफ करंट अफेयर्स स्टफ, बट ऑलमोस्ट 50% ऑफ प्रीलिम्स इज, मतलब 100-120 मार्क्स तो आपके ग्रैब में है। अगर आप करंट अफेयर्स में वीक हो प्रीलिम्स में, इट इज नॉट अ बिग डील, मतलब almost 50 to 60 questions come from static. So don't worry about current affairs at the beginning stage of your preparation. Attempt lot of MCQs of course, but वहाँ पे भी जो मॉडल आंसर है वहाँ से अपने नोट्स एनरिच करने हैं for each of these micro themes. ठीक है? Again, like I said, X factor notes
से पढ़ना है, फ्लैश नोट से पढ़ना है, आई शो यू ऑल दिस। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद स्टैंडर्ड बुक्स आर दे आर नॉट एग्जाम ओरिएंटेड एट ऑल। वहाँ पे कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, और वहाँ पे कोई करंट अफेयर्स नहीं है, एग्जाम्पल्स नहीं है, बस वो एक बेसिक समझ लो टॉपिक को, दैट्स व्हाट इट इज, राइट। सो आई होप दैट्स व्हाट इट इज। एंड एट बेसिस whatever your stage of preparation is, you can add and remove your micro themes जो भी लिस्ट होगी। दिस इज एट योर ओन पर्सनल लेवल की ये वाला टॉपिक तो मेरा अच्छे से प्रिपेयर्ड है, इसमें टाइम स्पेंड अभी नहीं करना है, या फिर इसमें से तो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो अभी नहीं करना है, ठीक है। सो दैट इज योर सिलेबस कवरेज का लूप क्लोज्ड, ठीक है। अब दिस इज हाउ यू क्लोज द लूप। आइडेंटिफाई, प्रायोरिटाइज माइक्रो थीम्स, मेक नोट्स, मैंने बता दिया कैसे नोट्स बनाने हैं फॉर प्रीलिम्स मेंस, आई हैव टोल्ड यू द नंबर ऑफ माइक्रो थीम्स एटसेट्रा, एंड दैट्स हाउ यू कवर सिलेबस ईच मंथ। कितने दिन में कितनी करनी है वो सब आपका पर्सनल साइकिल है, बट यू क्लोज लूप लाइक दैट, दिस इज योर वन लूप क्लोज्ड, ठीक है। नाउ अबाउट नोट मेकिंग इन वन पेजर, आई एक्चुअली शो यू। लॉट ऑफ टाइम्स वी मतलब हमारा अजम्पशन ये होता है कि अगर हम नोट्स बना रहे हैं मतलब मैं कुछ इट्स अबाउट एलिमिनेटिंग द कंटेंट, लाइक देयर इज अ ओरिजिनल बुक, उसमें बहुत सारा कुछ लिखा है, पर मेरे नोट्स में उसका सिर्फ 20% होगा, ठीक है। एंड दैट यू स्टार्ट लाइक दैट। सो होता क्या है कि द डिसीजन टू एलिमिनेट सर्टेन कंटेंट is very personal to you. For example, if let's say X person is able to remember dates better than other person, Y person, he will not or she will not write the date in the notes. He or she will not write the factual information in the notes. Ki memory strong है. We also eliminate content basis assumption. We say ये तो UPSC कभी पूछेगा ही नहीं, तो मैं क्यों लिखूं notes में? I hope you are understanding. The act of elimination comes from the assumption that you have as an aspirant. Like, what should I keep? What should I not keep? It is basis your assumption. Now, here I am telling you, you have no basis to make any assumption. You're just a beginner. अगर आप एक रैंकर होते, अगर आप ऑलरेडी एग्जाम निकाल लिए होते, अगर आप मेंस 2-3 बार दे चुके होते, तब फिर भी आई वुड हैव बिलीव्ड यू कि okay, you have a some basic understanding of how to prioritize note making, how to do it, because you have gone through the process, you know, you've qualified prelims and mains once in a while, so you know on what basis should you remove it, etc. ठीक है। So इतना easy नहीं है, that's what मतलब I'm trying to say. This is your general way of making notes. Let's say you see the content on your left side, आप पहली reading करोगे, and in that reading you will do the Lakshmikant ka reading. There's no note making right now. You're just reading cover to cover, trying to understand what it is, etc. And then you'll pick up a pen or pencil and then you'll underline कि अच्छा ये important लग रहा है, etc. ठीक है। जब आप underline हो चुका है, अगली बार when you are coming to revise this, you will start again from the preamble, union territory, etc. फिर से एक sequence में जा रहे हो, citizenship, cover to cover. What do you think we should do it? How do you think we should do it? Now that we are aware of micro themes, how do you think we should do the revision? We should do the note making. Should it be topic wise, cover to cover, or should we again prioritize everything like we did the syllabus? Tell me, how do you think we will be doing a revision or note making? Okay, correct. Some people are giving the attention at least. That is the whole point. This is the most basic thing. You will miss it. Like I said, आप बहुत नाइव तरीके से प्रिपेयर करोगे, आपको लगेगा लक्ष्मीकांत is the single source of truth. Nothing wrong with Lakshmikant. I'm not against Lakshmikant, but it's not a living entity. मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुरा मान जाएगा यार, आप अपने बारे में सोचो अभी, ठीक है। लाइक यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मैं वो टॉपिक सबसे अच्छे से करूंगा जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो मुझे ऑलरेडी पता है माइक्रो थीम का। सो व्हाट यू विल डू इज, दिस इज द राइट अप्रोच, यू विल डू फर्स्ट और सेकंड रीडिंग फ्रॉम व्हाटएवर कवर टू कवर, बिकॉज अभी आपको पता नहीं है। देन यू विल अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे देखो फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड डीपीएसपी पे लगा हुआ है, आपके पूरे लक्ष्मीकांत या नोट्स में लिखा होना चाहिए कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माइक्रो थीम में की प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा ऊपर है। तो जब आप रिवीजन पे भी आओगे या नोट मेकिंग या अंडरलाइन पे भी आओगे, सबसे पहले यू विल गो थ्रू दीज टॉपिक्स, यू कैन नॉट मिस, बिकॉज आ रहे हैं क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं आपका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप माइक्रो थीम आइडेंटिफाई, आपको लगता है कि बस माइक्रो थीम आइडेंटिफाई कर लो हो गया, नो, इट चेंजेस द कंप्लीट अप्रोच टू द एग्जाम। आपका रिवीजन, मॉक टेस्ट, हर चीज में आपको सिर्फ यही देखना है, जैसे ही फंडामेंटल राइट वर्ड दिखा, यू हैव टू मेक श्योर कि भाई से क्वेश्चन आ रहा है, आई कैन नॉट मिस। इट कम्स टू मॉक टेस्ट, सबसे पहले आप ये करोगे,
इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मेक श्योर करना है कि इसके क्वेश्चन तो भाई गलत नहीं होने चाहिए। अभी आप लगे हो कुछ और रैंडम लोअर फ्रिक्वेंसी के माइक्रो थीम को से स्टार्ट कर रहे हो, अपना नहीं करना है। सो डोंट टेक माइक्रो थीम एज समथिंग कि ओके देयर इज दिस पीडीएफ जो हमको बता देती है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल मेक। इट चेंजेस द वे यू प्रिपेयर। दैट इज व्हाट, सो योर रिवीजन, एवरीथिंग, नोट मेकिंग, सब कुछ चेंज हो जाएगा। This is fundamental right from your Lakshmikant, almost 30 plus pages. These are our flash notes. They compress that 33 pages into the 4 pages. And beyond that, you can even prioritize and make 1 page notes. Okay? From those, so I'll just show you. So there is no missing information in these. The way we do it is कि देखो, this is your fundamental right. Okay? What will happen is when you read this chapter, this fundamental right chapter, you will and because you have understood micro themes, you will realize कि यार आर्टिकल 20 या 25 के बाद तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे ही नहीं है। यूपीएससी ने सारे क्वेश्चन आर्टिकल 14 से लेके 20 या 25 तक ही पूछे हैं। दे हैव नॉट आस्क्ड क्वेश्चन आफ्टर 25 आर्टिकल। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक, हाउ मेनी ऑफ यू, if you didn't have this information, will you not be treating all the 32 articles in this chapter equally? Yes or no? बट वेन यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन वहां से नहीं आ रहे हैं, तो आपका फंडामेंटल राइट चैप्टर भी प्रायोरिटाइज हो गया है कि इसमें भी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर दे आस्किंग, फ्रॉम विच आर्टिकल, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो यू कैन सी फ्लैश नोट्स में, यू कैन सी सबसे ज्यादा वी हैव प्रायोरिटाइज द फ्लैश नोट्स की 20 आर्टिकल तक ही क्वेश्चन है, तो हमने नोट्स भी प्रायोरिटाइज कर दिए। यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप फोकस से पहले ये तो कर लो भाई। आप अभी कहाँ 30-32 आर्टिकल में, जहां से पूछ रहा है वो कर लो, ठीक है। लाइक यू कैन सी, you can go more ruthless from here. आपके handwritten notes, article 14 16 are, these are the most important one. How do you know? Because माइक्रो थीम ने आपको बता दिया कि नेचर ऑफ क्वेश्चन ये है, ये टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार आए जा रहे हैं, 10-10 12-12 क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है। एंड देयर इज एविडेंस फॉर इट, नो वन इज अज्यूमिंग, एक्चुअल यूपीएससी के क्वेश्चन है। आर्टिकल 25 ऑनवर्ड्स लेस इंपॉर्टेंट, रेस्ट नीड्स द बेसिक अटेंशन। पता होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीएससी के फेवरेट ही हो गए वो टॉपिक। दीज 3-4 टॉपिक्स नीड टू बी कवर्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है। एडिशनली दीज 2-3 टॉपिक्स रिक्वायर वाइडर रिसर्च। लुक एट योर द लेवल ऑफ अवेयरनेस यू हैव इन ऑर्डर टू अप्रोच ईच पार्ट ऑफ द सिलेबस। अब फंडामेंटल राइट को ऐसे, बिफोर दिस यू वुड हैव रेड फंडामेंटल राइट्स लाइक एनी अदर चैप्टर, and inside fundamental rights you would have given equal importance or no importance to the things. ये दो ही केस हो सकते हैं। आई एम गिविंग यू न्यू पर्सपेक्टिव कि भैया एग्जाम से थोड़ा क्लोज होके पढ़ लो, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, दिस इज द वे वी नीड टू अप्रोच द एग्जाम, बिकॉज दैट इज हाउ यू नो, दैट इज हाउ रैंकर्स अप्रोच द पेपर इन फंडामेंटल। तो एक टॉपिक आई हैव गिवन यू द एग्जांपल। आफ्टर दिस 100% go for the mock test. If you can't go for the mock test, once you've covered the fundamental rights and note making like this, it's okay, you attempt the PYQs, ठीक है। अगर इतना अर्ली स्टेज में कि आपको मॉक टेस्ट नहीं देना, प्रीलिम्स का एटलीस्ट, सो यू गो एंड अटेम्प्ट PYQs or mock test. For mains you can again see the PYQs, try to write a paragraph or something like that, and if you can, good, if you have achieved a stage जहाँ पे आप actual answer लिख सकते हो, just remember don't do those fatal 5 mistakes, okay। And again, take feedback from mentor. PTD is post test discussion, so wherever you're writing the test, make sure that you are taking some feedback, okay। I'll just quickly show you some of the 1-page notes of a ranker. This is one of the rankers. ये GS1 के हैं, society के notes हैं, so that you have some idea. I actually wanted to show you the whole thing, but we will not have that much time, but just glance through कि ये 1-pager final notes हैं। So यू कैन सी सोसाइटी एक माइक्रो पार्ट ऑफ द सिलेबस है, अंडर सोसाइटी पॉवर्टी एक माइक्रो थीम है जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है, क्वेश्चन आ ही रहा है, तो उन्होंने सब बना लिया है। मतलब इतना बना लिया है कि अगर क्वेश्चन आता है तो शी विल राइट द कोट ऑल्सो। सो आई एम श्योर, यहाँ देखो ये लास्ट में उसने कोट भी लिख लिया है पीएम का कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ये बोला है, तो शी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। इतना प्रिपरेशन हो चुका है कि उसको पता है यहाँ से क्वेश्चन आना है, तो मेरे को सरप्राइज नहीं होना है एक्चुअल पेपर में। आई वॉन्ट टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि पता है ना कि क्वेश्चन आ ही रहा है, तो द मोमेंट यू सी क्वेश्चन प्रॉपर्टी का, आप रेडी हो। तो जो लोग टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, लॉट ऑफ हैपेंस हियर, लाइक वहां पे सोचने का टाइम नहीं है। दिस इज जीएस पेपर 2 का है,
separation of power, etc. I'll just quickly glance through some of the one pager of GS paper 3 for each sector. This is sectors in economy. For GS paper 4, these are civil servant values. These are Western philosophy, Eastern philosophy on your right side. Okay, this is an Indian philosophy. A note on attitude. So these are called one pager notes from a ranker, right? This is how you close the loop for for your note making and making one pager. Okay. For mock test and post testing, like I said, giving mock test, it is basically a bridge between your study and preparation. A lot of us understand कि पढ़ाई करना प्रिपरेशन करना है. ऐसा नहीं है, पढ़ाई सब करते हैं तो सबका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए ना. मतलब ऐसा, दिस इज नॉट द पॉइंट कि आपने 8 घंटे पढ़ लिया तो हो गया. अभी मैंने आपको दिखा दिया कि आपकी 60-70% तो रिलेवेंट ही नहीं है वो यूपीएससी से जो आप पढ़ रहे हो. इट इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल. ले दे के 10-20% ही रिलेवेंट है. आई एम ट्राइंग टू फ्लिप द प्रिपरेशन हियर कि पहले वो करना है जो यूपीएससी पूछ रहा है, विच इज माइक्रो थीम, एंड उसके नोट्स भी ऐसे बनाने एटसेट्रा. एंड सेम वे वी नीड टू अटेम्प्ट मॉक एंड टेस्ट. सो गिविंग मॉक टेस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यू हैव टू क्लोज दिस लूप, राइट? And make sure that you are, when you attempt the paper also, there is a strategy to it, etc. It's a longer conversation, but I'm trying to put thought in your head ki please distinguish between studying 8 hours and preparation actually में mock test में ही होगी. तो आप उसको जितना डिले करोगे, जितना हाइड करोगे, उतना प्रॉब्लम है. सो डोंट, मतलब अगर आपके पास मॉक टेस्ट अभी नहीं है तो स्टार्ट विद पीवाईक्यू, बट यू हैव टू. देयर इज नथिंग बेटर देन मॉक टेस्ट. प्रिपरेशन करनी है तो मॉक टेस्ट देने ही पड़ेंगे. मतलब इट डजंट, वो सब बाकी फिर स्टडी है, ठीक है? सो बिकॉज वंस यू गिव मॉक टेस्ट यू विल बी एक्सपोज्ड टू सर्टेन गैप्स कि मैंने तो सोचा था ये करना चाहिए बट क्वेश्चन तो ये आ रहा है, या मैंने अच्छे से ये वाला टॉपिक कर लिया था, व्हाई एम आई स्टिल स्ट्रगलिंग इन राइटिंग आंसर्स, मेरे सोचने में क्या कमी रह रही है, मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा. ये सब एक्सपोज हो जाएगा. एरर एनालिसिस है, आपको फीडबैक मिल जाएगा तुरंत किसी मेंटर से, किसी और से, खुद से भी, कि यार ये तो मैंने आई अज्यूम्ड समथिंग एल्स एंड समथिंग एल्स इज कमिंग, राइट? सो मेक श्योर दैट मॉक टेस्ट तो नॉन नेगोशिएबल है. क्लोज दैट लूप आल्सो. अ लिटिल बिट ऑन रिवीजन. रिवीजन बेसिकली 3 टाइप का है. फर्स्ट इज अ ब्रॉड रिवीजन जो आप अर्ली स्टेजेस में करोगे. आप एक बुक उठाओगे, यू विल रीड अ चैप्टर, मे प्रॉब्ली आफ्टर 1 वीक, 30 days, 15 days यू विल कम बैक टू दैट एंड आप उसी बुक से पढ़ोगे. दैट इज अ ब्रॉड रिवीजन. जो ओरिजिनल बुक है आप उसी से ही, ब्रॉड रिवीजन इज डन फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स. एनसीईआरटी खत्म की, एनसीईआरटी से ही रिवाइज कर रहे हो. Eventually you will have one pager notes. Now your revision has become very refined. Why? Because one pager notes are made on micro themes. Original source is not prioritized. Spectrum doesn't differentiate between this topic and that topic. Your one pager notes are prioritized micro themes. So now your revision has become refined. अब आप पहले वो रिवाइज कर रहे हो जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं. That's what I'm saying. If you think micro theme is just a PDF, that is wrong. It changes your complete, the way you revise, attempt, everything, make notes, सब बदल जाता है because हर कुछ अब prioritized है. So now if you do the revision after one page notes, अब आपका revision बहुत ज़्यादा refined है, prioritized है. आप disaster management को उतना important, आप पहले तो fundamental right करोगे revise before you revise disaster management 100%. Now you're very sharp and not fooled by random noise कि ये भी कर लो वो कर लो, वो तो अब नहीं है. And last is third, test based or mock test based revision. When you attempt a mock test, आपका एक certain topic पे गलत ही हो जा रहा है क्वेश्चन. आपको लगा कि फंडामेंटल राइट तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, बट देयर वर 10 questions, MCQ questions on that, and I got only 6 right. I got 4 fundamental right question wrong. That tells you something. Because I was assuming मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो कहाँ पे इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो आप फिर उसके मॉडल आंसर में जाके देखते हो उस MCQ के कि क्या नहीं आ रहा है समझ में, लाइक व्हाई एम आई लूजिंग मार्क्स है. सो यू आइडेंटिफाई द गैप और एरर्स एंड देन यू गो बैक टू add that knowledge in your one pager notes of fundamental right. From that model answer, pick up that information that you got wrong, add in your one pager notes and then revise the micro theme. Why are you doing this? Because fundamental right से क्वेश्चन आना ही है. अभी गलत कर लिया अच्छा है, एक्चुअल एग्जाम में नहीं होना चाहिए. So the third kind of revision is your test based from one pager only. But अब आपको लग रहा है कि ये वाली माइक्रो थीम से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मेरे को इसको रिवाइज कर लेना चाहिए था. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज रिवीजन का लूप क्लोज. दिस इज द वे you need to approach, etc. Right? I'll give you
मैक्रो टाइम टेबल ऑल्सो दिस 1 ईयर अभी जो बचा है नवंबर से लेके मार्च तक, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फोकस ऑन योर फर्स्ट बिग फोर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, स्टार्ट विथ योर एनसीईआरटी 11th and 12th. They you'll not miss anything from 6th to 10th, but in case you're not able to understand certain concept, then you go down a class, right? 10th class, 9th class, like that. Otherwise अगर आपको समझ में आ रहा है, 11th and 12th are completely fine. You don't need to do 6th class से लेकर 12th class, ये सब नहीं करना है. Everything is covered in 11th and 12th. And then of course you have standard books. So वहाँ से from March to May start focusing on mains micro theme a bit. Or when I say you're starting from your mains preparation only, what I mean is common micro themes जो prelims और mains में दोनों है. May 26 को आपका prelims का पेपर है. Don't go, this is for 2027 people. Attempt that paper on the day. मतलब don't go to the exam hall. You have probably not applied or filled the form, but you need to know how much you are prepared, what kind of questions are coming. So सेम डे पे या अगले दिन बैठ के जीएस का पेपर और सी सेट का पेपर 100% देना है अगर आप 2027 अटेम्प्ट कर रहे हो. डोंट बी फेयरफुल अबाउट कितना आएगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मेरा तो 20% सिलेबस हुआ है यार. फॉरगेट एवरीथिंग. You just want to have a feel of what is going to happen next year. How does it feel? What is यूपीएससी asking? वो एग्जाम की फील होना जरूरी है, भागना नहीं है. नो वॉट इज यूपीएससी आस्किंग. कुछ बदल गया है, सी सेट में कुछ नया आ रहा है, जीएस में कुछ नया आ रहा है, सो वी हैव टू नो, राइट? सो अटेम्प्ट दैट पेपर. नाउ आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट ईयर. सो मई के बाद जून सितंबर के बीच में रिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया, you start revising, you start covering your optional, right? No, yeah, start with mains preparation, whoever is asking in the chat. But eventually in 4, 5, 6 months, look at this now. From November, December, January, February, March, you almost have 5 months. 5 months में आप बेसिक एनसीईआरटी एंड कोर बुक तो पढ़ ही सकते हो यार. एक एक दो दो रीडिंग कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो. आपका एक अटेम्प्ट तो 27 में है. एंड वंस दैट इज डन, लुक एट दोस 50 कॉमन थीम्स एंड उनको कवर करने की जरूरत करो. मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने में. मार्च मई के एंड में संडे को आपका होगा यूपीएससी प्रीलिम्स. So what you have done is you have covered mains micro theme. You have covered the common micro themes between mains and prelims, and now you're trying to see कि क्या पूछ रहा है यूपीएससी. थोड़ा बहुत देखो कि कैसा आ रहा है, क्वेश्चन क्या आ रहा है. तो ये 6-7 महीने तो बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही प्रोडक्टिविटी के साथ हमको यूज करने हैं, ठीक है? ये मत जाने देना यार. मतलब ये 6 महीने डोंट लेट देम गो. कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्लीज इस आज के बाद तो मतलब आफ्टर नोइंग ऑल दिस प्लीज बी वेरी सिंसियर. ये 6 महीने चले जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी. ये सब में मत रहना कि 1 साल में हो जाएगा. 1 साल है, अभी तो 1.5 साल है. मैंने बता दिया है, सक्सेस का चांस बहुत रेयर है. तो अपना माइंडसेट थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा और सिंसियर होना है. मतलब मेक श्योर दैट हैपेंस. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, एवरीथिंग इज एविडेंट हियर. ये बेसिक टाइमलाइन है कि आप इन पे स्टिक रहो, ठीक है? ये आपको कवर करना ही है. दिस इज फ्रॉम योर जून 26. पर जून 26 के पहले भी बहुत काम करना है, मैंने बता दिया है. तो ऐसे नहीं कि जून 26 से ही रियल प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है, मत करना. मतलब डोंट डू इट. इट इज, मुझे क्या है यार, इट इज गोइंग टू हर्ट योर प्रिपरेशन, योर चांसेस ओनली. सो मेक श्योर यू हैव अ बेसिक दिस थिंग. एंड टू होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, हैव अ शेड्यूल लाइक दिस, ठीक है? स्लॉट्स बना लो, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4. और ये जो लिखा हुआ है सारा कुछ माइक्रो थीम के बेसिस पे प्रायोरिटाइज होना चाहिए कि किस स्लॉट में कहाँ से कौन सी माइक्रो थीम करना है मेरे को, ठीक है? सो दिस इज योर वीकली प्लानिंग. एंड लास्टली आई टॉक अबाउट सिविल्स डेली मेंटरशिप. वी डोंट बिलीव इन रैंडम कॉलिंग, ये सब. ये कोई टेलीग्राम ग्रुप जैसा नहीं है. ये जो मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया, पूरा माइक्रो थीम बेस्ड सिस्टम पे ही इज व्हाट वी बिलीव शुड बी डन. एंड बच्चे को जितना एग्जाम के क्लोज पढ़ाओ, दैट्स व्हाट वर्क्स. अदरवाइज तो फिर नॉइजी है. रिकॉग्नाइज योर गैप फास्टर. सिर्फ ये नहीं समझना कि किताब पढ़ ली, वो पूरा लूप क्लोज करो. किताब पढ़ना, नोट्स बनाना, प्रायोरिटाइज करके सिलेबस को आइडेंटिफाई और प्रायोरिटाइज करना है, फिर अटेम्प्ट करना है. अटेम्प्ट करने के बाद हमको ये देखना है कि कहाँ पे गैप है, फीडबैक लो और फिर से वो रिवाइज करो और आगे बढ़ो अगले टॉपिक पे. ये है एक पूरा लूप, ठीक है? वो हमको बिल्कुल पागलों के जैसे अपने एरर को ढूंढते रहना है अगले 1-1.5 साल तक कि कहाँ पे हो रहा है, कहाँ फंस रहे हैं, लाइक वेयर इज इट दैट यू गेट स्टक, ठीक है? दिस इज दीज आर द थिंग्स दैट वी ट्रैक इन आवर मेंटरशिप, राइट? कितना टारगेट हो गया है, यू कैन सी द रियल, दिस इज अ स्क्रीनशॉट ऑफ आवर डैशबोर्ड.
कितना माइलस्टोन हो गया है फॉर अ पर्टिकुलर किड, how regular are they, what is the potential of the student, is it normal, is it ranker level, is it border level, what is the mentor's intervention. So each conversation that happens, we track these metrics, right? And this is again the dashboard that we use to make sure कि everything is extremely transparent, etc. ठीक है, so that we know कि अभी कितना कवर हो गया है, क्या हो गया है. And mentor का dashboard, it looks like this. Look at these phone calls and milestone covered by. And अगर आप यहाँ पे potential देखोगे तो ranker का है. This kid has a ranker potential. So there's a high chance they will make through the exam. That's what ranker potential is. And ranker potential is identified basis how many, उनका मार्क्स कितने बढ़ चुके हैं प्रीलिम्स और मेंस के मॉक टेस्ट में अगेन एंड अगेन, राइट? None of you should be going without hitting 3 weeks, more than 3 weeks without hitting the milestone. We don't do that. मतलब कैसे भी करके आपको वो पर्टिकुलर माइलस्टोन माइक्रो थीम करवा ही देंगे 2-3 हफ्ते के अंदर. हो ही नहीं सकता कि you will go through it. Mentor will keep coming back to you. They will keep making sure that आप सर्टेन जितना आपको टारगेट दिया है वो हो रहा है, राइट? ये देखो, नो टेस्ट वाले हमको पहले से ही पता चल जाते हैं. We can identify if certain person has not given any test in 3 weeks, if certain person has not completed the milestone. Automatically the system tells the mentor कि पीछे चल रहा है बच्चा, we need to talk. अगर आप ranker potential हो, all of these people are ranker potential and border potential. If they keep continuing the account, मतलब they keep following the advice, then you will see keep their name will be in it. So we are giving them some special attention क्योंकि वो भी बिल्कुल sincerity के साथ लगे हुए हैं, right? So that's what, and we get to know the system also. These are it, almost 80-90% people are active, they are following advice. 6% are ghost. ये वो बच्चे हैं जिनको शुरू में बहुत ज्यादा जोश होता है, ये करना है वो करना है, दुनिया बदल देंगे, बट इवेंचुअली 2-3 महीने में वो चला जाता है. इसलिए गाइस डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, इट डजंट लास्ट. आपको सीरियसली पूछना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हो यार ये प्रिपरेशन. मतलब सिविल सर्विस इज नॉट अ करियर. मतलब उसको ऐसे जॉब के जैसे देखोगे तो बहुत ड्राई प्रिपरेशन है, मतलब मत करो, ठीक है? बिल्कुल, मतलब अंदर से ही यू शुड बी फीलिंग व्हाई एग्जैक्टली यू वांट टू डू इट. इट्स योर पर्सनल रीजन, यू डोंट नीड टू अनाउंस इट टू द वर्ल्ड. बट थोड़ा सस्टेनेंस का गेम है, ठीक है? पेशेंस चाहिए इसमें 1-2 साल का, और थोड़ा सा स्मार्ट और क्लेवर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, प्रायोरिटाइज करके. एग्जाम है, थोड़ा हैकी तरीके से प्रिपरेशन करोगे, समझ के करोगे, द वे दे वांट यू टू डू. यूपीएससी वो बोल रहा है मेरे फेवरेट टॉपिक है, फिर भी आप डीप्रायोरिटाइज करोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है? दिस इज दिस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटरशिप सेशन दैट हैपन. किसी में समाचार मंथन का डिस्कशन हो रहा है, किसी में प्रीलिम्स का पोस्ट टेस्ट डिस्कशन हो रहा है, किसी में मेंस का होता है. सो नॉट ईच कन्वर्सेशन विद द मेंटर इज सेम. इट डिपेंड्स ऑन क्या नीड है एंड व्हाट इज द स्टेज ऑफ देयर प्रिपरेशन, व्हाट डू दे वांट. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज वी आर एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट अबाउट आवर मेंटरशिप. हम हर हफ्ते यूट्यूब पे कम्युनिटी में डालते हैं कि वी आर, कि इस हफ्ते हमने कितने बच्चों से बात की है, कितने फोन कॉल्स हुए, कितने सेशन हुए, कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, कितने बच्चों. So we curate this almost every week, put it there. Not only students, aspirants, we also track mentor so that they are also accountable to make sure they are pushing the bacha and they are accountable too, right? So last I want to talk about the burning issue. We have updated burning issue magazine to another level, right? Burning issue is something uh, which solves two things. One, it tells you, it makes you aware about the DAE thing, which is dimension, argument, and example. Second, it solves for the memory, right? So I'll give you, I'll actually show you burning issue. Are you able to see the burning issue? Just write yes or no. The magazine. Can you see the magazine? Okay, okay, thanks. So this is the updated September ka burning issue. Okay, it's a monthly magazine. It's freely available, and it comes every month. The idea is, when you cover, let's just take an example. When you cover certain topics for UPSC, let's say Saha guidance. So we curate, हम हर कुछ cover नहीं करते हैं burning issue में. To say कि
XYZ मैगजीन से पढ़ लो, इससे ही आता है। अरे जब तुम सब कुछ ही कवर कर दोगे, बच्चे को पूरा ही पढ़ा दोगे, तो और कहाँ से आएगा? मतलब इस यूनिवर्स के बाहर से क्वेश्चन थोड़ी आ जाएगा भाई। ये कैसा बेवकूफ बना रहे हो यार? मतलब व्हाट आर यू इवन सेइंग कि व्हेन यू विल कवर एवरीथिंग एंड देन यू क्लेम कि सब मेरे से उससे आया? मतलब आई कांट बिलीव, लाइक मतलब इतने मैच्योर कैसे? हाउ कैन यू इवन बिलीव दैट? सो द इंटेलिजेंस इज कि आप यूपीएससी को समझो कि वो किस टाइप के टॉपिक्स में क्वेश्चन पूछेगा, क्यों वो एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट को चाहता है कि भैया यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। Ask that question. Why would UPSC want you as a future civil servant to be seriously aware of this topic or issue? Because it will need your intervention in future, this issue, to solve, to find solution to these issues. तो वो इंटेलिजेंस है ना कि आप कुछ 15-20 टॉपिक ही क्यूरेट करो और बच्चों को वो पढ़ा। सो आर इंटेलिजेंस इज कि इनसे ही पढ़ना है, यही पढ़ना है। वी डोंट गिव यू एवरीथिंग, वी मेक श्योर कि 15-20 टॉपिक पढ़ो। ये दैट्स व्हाई द नेम बर्निंग इशू। These are extremely important. So let's just take an example, Saha guideline case, right? Look at the way it is structured. So you see dimension 1, dimension 2. What dimension teaches you? It teaches you कि what kind. So there is a issue, Saha guidelines, mental health related, etc. हम क्या पूछ रहे हैं कि यार forget remembering everything. Just understand first what kind of questions can UPSC ask? How do you know that? कि why are Saha guidelines a constitutional milestone under Article 21? कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन आया है कि ये आ सकता है? बिकॉज व्हाट वी डिड, वी वेंट बैक एंड सॉ कि यूपीएससी इन सारे टॉपिक्स में किस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स, किस टाइप के इंटर गवर्नमेंट और इंटर मिनिस्ट्री टसल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशंस, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। और हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, वी हैव गिवन यू एक्चुअल पीवाईक्यूज कि ऐसे टॉपिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। All we did is that we went ahead and tried to craft a question. So अब आपको क्या करना है? अच्छा यार, यूपीएससी ना इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछता है, राइट? यूपीएससी जनरली आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. All they have done is actually just applied that kind of question to Saha guidelines. अब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. Now we have solved it for you कि भैया these are the kind of questions they can ask in Saha guidelines. ये रहा आपका argument. Argument is nothing but your central पॉइंट टू डिफेंड कि ये सही है गलत है। बाकी आप इंग्लिश लिख लोगे, बट एक्चुअली आपको सेंट्रल कोर आइडिया समझ में आना चाहिए कि दिस इज व्हाट माय आर्गुमेंट इज, एंड वी हैव गिवन यू सर्टेन डेटा पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स आल्सो सो दैट यू कैन डिफेंड दैट आर्गुमेंट। सम एविडेंस कि आप गलत नहीं बोल रहे हो, देयर इज एविडेंस टू इट, देयर इज सम डेटा एटसेट्रा। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ नॉट, आई विल जस्ट रिपीट अगेन द डिटेल्स। लुक एट दिस. Don't read these issues like an article. Read them like investigated dimensions supplemented by back to basics, right? So the dimension headers tells you what kind of questions can come. Argument phrase, they become the anchor to your answer. And examples and data points, they are the proof to back up your reasoning. Okay? I'll share the link of burning issue. You will have all the month burning issue, not just September. This is September. We have updated it this month. We have changed the structure. सो लुक एट ऑल द डायमेंशंस। ठीक है, ये टॉपिक कवर है। अब आपको मेंटल हेल्थ या साहा गाइडलाइंस के बारे में मान लो कुछ नहीं पता है, फिर आप वो गूगल रिसर्च ये वो में लग जाओगे। नो, वी हैव केप्ट इट हियर, वी आर गिविंग यू ऑल द बेसिक्स ऑफ द इशू हियर। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन से लेके जजमेंट, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है, कहीं नहीं जाना है, प्रॉपर तरीके से कवर्ड है, हैंड क्यूरेटेड बाय अ ह्यूमन, सब कुछ यहाँ पे है बर्निंग इशू में। की चैलेंजेस हैं, वे फॉरवर्ड है, सब कुछ है। एंड अगर आपको कहीं से और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो नोट्स लिखने के लिए जगह भी दी है जहां से आप ऐड कर लो इसमें। और डन, साहा गाइडलाइंस 100% एंड टू एंड कवर्ड। और ये इशू के चांसेस बहुत ज्यादा है आने के। जीएसटी 2.0 हुआ है अभी, मतलब मोस्ट ऑफ यू विल बी अवेयर, यू कैन सी कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड हम ये कैसे लिख रहे हैं क्वेश्चन, वी हैव एविडेंस, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लुक एट, हमने लिख के दिया है। So that this is why we always push you towards clarity. Random noise में मत चले जाओ भाई, फ्लैशी चीजें देख के, ये वो, मतलब सिंपल रखो प्रिपरेशन। एंड दिस इज हाउ द बेस्ट मोस्ट शार्पेस्ट ऑफ द कंटेंट इज मेड। इतनी फाइट लगती है, ऐसा नहीं कि कहीं पीआईबी उठाया, सेम चीज कॉपी पेस्ट करके, हिंदू उठाया, सेम चीज कॉपी पेस्ट करके एक पीडीएफ में लगा, प्रिंट करा और बोल दिया मैगजीन है। मतलब
I can't believe the amount of time is wasted by aspirant there. But anyway, now you shouldn't, now that you're aware of it. So this is, again, like I said, this is burning issue, and that's something that we have launched, and it is freely available. If you are in ORN, तो वहाँ पे मिल जाएगा, but otherwise PDF is also available, right? So that's important. So make sure your strategy, which is microtheme, etc., is at place whenever you're opening up a loose loop. Follow it through, मतलब पूरा close करो उसको, बस कुछ भी खोल लिया वैसे नहीं. Content, like I said, keep it very PYQ oriented. Note making मैंने बात की है, burning issue भी दिखाया, हमारे expected notes most of you will know, etc. Micro theme, annotated NCRTs, ये सब कुछ है. मतलब I'll give you the drive link, but and last is feedback and mentorship, right? So just scan through this, and you will have access to everything, including burning issue. Systemic way of preparing for civil service exam. Like I said, this is a part of our UAP mentorship, ultimate assessment program. You can scan through this and reach out to us for any other query, or you can just give a missed call to this number and know more about ultimate assessment program. This is our way of mentoring. Random call करना, telegram group बना लेना, मतलब you have, I think, I personally believe, and everyone here at believes, like we need to sit with the student, मेक श्योर कहाँ पे फंस रहे हो, क्या लेवल का नोट्स है, रैंडम नॉइज में तो नहीं हो, सिलेबस ही प्रायोरिटाइज नहीं है अभी. बहुत बेसिक इश्यूज हैं यार. स्पेशली बिगिनर लेवल पे तो लोगों को समझाने में ही बहुत एनर्जी लगती है कि आप ये क्यों पढ़ रहे हो, इसका कुछ रिलेवेंस नहीं है. तो रियलिटी चेक है. गिव अस अ मिस कॉल, टॉक टू अस. इफ यू फाइंड यूएपी, देन टेक दैट हेल्प.